کہ جامعات جو ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے, وہ اپنا بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. آپ بتائیں, آپ یو وانٹ ٹو لیڈ اور یو وانٹ ٹو رول, آپ کس کو پریفر کریں گی؟ میں لیڈرشپ پہ بلیو کرتی ہوں, رولنگ پہ بلیو نہیں کرتی. میرا بلیو یہ ہے کہ اگر سب آپ کے ساتھ ہیں تو آپ سکسیزفل ہیں, آپ اکیلے تو سکسیزفل ہو ہی نہیں سکتے. تو زندگی کا ہر ایکسپیرینس آپ کو کچھ سکھا کے جاتا ہے. لائف از اے سیریز آف پریزنٹیشن. یس بالکل. اچھا میم, یہ بتانا چاہیں گے کہ صبر کی کوئی حد ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, یا نہیں ہوتی؟ لائف از ناٹ آلویز ویری اسموتھ فار ایوری. تو میم یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کا پورا پروسیس لائف کا رہا ہے, اب خاص طور پہ آپ زیادہ پریکٹیکل لائف میں آ گئی, تو لوگوں کو جب آپ سے ملنے آتے ہیں تو آپ کا بلیو ہے کہ ان کو توجہ فل دینی چاہیے کہ پارشل؟ آپ کو رسپیکٹ صرف تب ملے گی جب آپ لوگوں کو رسپیکٹ کریں. آپ کا خیال کوئی تب رکھے گا جب آپ لوگوں کا خیال رکھیں. میں نہ ڈاکٹر ہوں, نہ میں انجینئر ہوں, نہ ہی میں کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں, لیکن میں سکسیزفل انسان ہوں الحمدللہ. کہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ خود ہی آپ سے وہ ذرے کو پہاڑ بنا دیتا ہے, ایک وقت آ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کسی عمر سے نکال نہیں سکتی سوائے اللہ کی. اب میں چاہ رہا ہوں اسی سے ہم نا بچوں کی کاؤنسلنگ کریئر کے حوالے سے بھی آپ بات ہی کر لیتے ہیں. اس کا بینیفٹ کیا ہو رہا ہے انہیں؟ سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے اور سائیکولوجی پڑھنی چاہیے, یہ اس کے کیا لوگوں بچوں کو مانیٹری ٹرمز میں اور ان کو سوشل ٹرمز میں یا کس طرح کے بینیفٹس ہو سکتے ہیں؟ اس کے پہلی بات تو پرائمریلی بھی آپ کو ہیومن بینگز جو ہے نا وہ ہر فیلڈ میں انوالو ہیں. کہ سائیکالوجی بہت پرانا ڈسپلن نہیں ہے, لیکن اتنے چھوٹے ٹائم میں تھوڑے ٹائم میں سائیکالوجی اتنا گرو کیا ہے کہ اب امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن جو دنیا کی سب سے لارجسٹ ایسوسیشن آف سائیکالوجسٹ ہے, اس کی جی 44 ڈویژنز ہیں. زندگی ہے تو اتنی ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند اور آدمی افسانہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ افسانہ ہو جائیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. میرے اندر یہ بھی فیلنگ ہے اور ان میں بھی ہے. تھینک یو سو مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ایک آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک ایشو کی طرف کہ جامعات جو ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے, وہ اپنا بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, لیکن یہ فیل کیا گیا ہے کہ وہ جامعات کا جو ہے عام لوگوں کے ساتھ ربط جو ہے وہ کم ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ مغرب کے, اچھا مغرب کی میں اگزامپل دیتا چلا جاؤں, وہاں پہ ان کے نہ صرف اپنے اخبارات ہوتے ہیں, اپنے ٹیلی ویژن ہوتے ہیں چینل, نہ صرف ریڈیو چینل ہوتے ہیں بلکہ یوٹیوب چینلز بھی ہوتے ہیں, جس سے وہ سماج کے ساتھ اور خاص طور پہ ینگ لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اس پداش کے اندر اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میری ٹیم نے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک مشن کے طور پہ اس چینل جس کا نام ہے انسنگ اچیورز, اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ان میں ان اچیورز کو بلائیں گے جنہوں نے اپنا کام, اپنا پروسیس, اپنی زندگی کا جو سفر ہے وہ آنیسٹی, ٹروتھ اور رسپیکٹ کے ساتھ اور پیشنس کے ساتھ اور سخت محنت کے ساتھ کیا. اور ہمارا جو چینل ہے اس کا سلوگن ہوگا کہ ڈو اٹ یور سیلف ود رسپیکٹ, ٹروتھ اینڈ آنیسٹی. اب اس چیز کو خاطر میں لاتے ہوئے, اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آج ایک ہماری بہت ہی اچھی معلم بھی ہیں, وہ محقق بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں, اور ان کا کئی سالوں کا 2 دہائیوں پہ مشتمل ان کا ایکسپیرینس ہے, ان کو ہم نے آج مدعو کیا ہے تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ زندگی میں کیا ان کے مائل سٹونز ہیں, ان کا کیا اس کے جو ہے چیلنجز کیا فیس کرنے پڑے اور ان کو کیسے انہوں نے اوور کم کیا, تاکہ آپ کی بھی لائف کے اندر تبدیلی آ سکے. مشن تبدیلی ہے اور یہ فادر سے کو اللہ کوشش کریں گے ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کے سامنے چیزیں پیش کرنے کی. تو میں شروع کرتا ہوں بغیر زیادہ وقت لیے. ان کا بریف انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ پی ایچ ڈی انہوں نے اپلائیڈ سائیکالوجی میں کی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ یہ اس وقت ہمارے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ٹینیورڈ کامسٹس یونیورسٹی اسلام آباد لاہور کیمپس میں, ہیومینٹیز ڈپارٹمنٹ کی چیئر بھی ہیں, اور 7 کیمپسز ہیں آپ کو بتا دوں آڈینس کامسٹس کے, اور ان 7 کی جو ہے وہ کیمپسز کی چیئر پرسن ہیں یہ. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے بہت سارے ریسرچ پیپرز ہیں, ان کے آرٹیکل چھپ چکے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ میڈم سے ہم بات چیت آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. میم بہت شکریہ آپ ادھر آئیں, ویلکم آپ کو, اور بہت شارٹ نوٹس میں آئی, اور آپ کو میں نے جب کہا کہ سوشل ورک کے لیے کرنا ہے تو آپ نے کہا لبیک کہا. اب میڈم یہ بتائیں کہ آپ تھوڑا سا ہم آتے ہیں آپ کے تھوڑا بیک گراؤنڈ کی طرف, ویسے چلیں ایز اے لیڈر بھی آپ کا چلیں ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ یو وانٹ ٹو لیڈ اور یو وانٹ ٹو رول, آپ کس کو پریفر کریں گی؟ دیکھیں میری ویلیوز تھوڑی سی شاید کنونشنل ہیں. میں لیڈرشپ پہ بلیو کرتی ہوں, رولنگ پہ بلیو نہیں کرتی. لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے, جو ٹیم ورک
یعنی سیلف ورک نہیں، ٹیم ورک. نہیں، سیلف ورک نہیں. اب میرا بلیو یہ ہے کہ اگر سب آپ کے ساتھ ہیں تو آپ سکسیزفل ہیں. آپ اکیلے تو سکسیزفل ہو ہی نہیں سکتے. اکیلا بندہ کہیں نہیں جا سکتا. آپ نے ٹیم کو ساتھ لے کے جانا ہے تو آپ ترقی کریں گے. لوگوں کے ساتھ آپ ہیں اور اگر لوگ نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں. میم آپ لیڈرشپ کے رول میں بھی رہی ہیں تو آپ نے دیکھا بھی ہے اپنے بڑوں کو بھی سب کو، تو آپ اس کا مطلب ہے ہیومن سینٹرک اپروچ آپ کی زیادہ نسبت رول اورینٹڈ. جی. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ پیشنس زیادہ ضروری ہے لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے یا کمیونیکیشن؟ دونوں ضروری ہے. پیشنس بھی آپ کے لیے، اس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کا لیڈر یا رولر جو بھی ہے وہ آؤٹ بسٹ کرے گا، برن آؤٹ ہوگا، ہر چیز پہ ہم ایموشنلی ریئیکٹ کریں گے تو یو آر ناٹ اے گڈ لیڈر. آپ کو لوگوں کو سننا بھی ہے، آپ کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول بھی رکھنا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے، ان کو ٹریک پہ بھی رکھنا ہے، اس کو ٹیم ورک میں بھی رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو آپ کو لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے اور آپ کو اپنے آپ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. میم آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو ہر کوشچن کا آنسر پتا ہے کہ نہیں پتا، یا آپ کہتے ہیں کہ میں نو اٹ آل پرسنالٹی ہوں؟ ویسے تو آپ نے اس کا آنسر دے دیا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں لائف از آلویز لرننگ. ہمیں اگر آپ یعنی ون ٹائم لرننگ ہے یا کنٹینیوس لرننگ؟ نہیں، کنٹینیوس لرننگ ہے. دیکھیں اگر ہم مسلمان ہیں نا تو علم جو ہے وہ جو پیدا ہونے سے لے کے قبر تک جو ہے نا آل لائف از آلویز لرننگ. تو میم آپ ایکسپیرینس کو ابھی بھی ہم لرننگ کے اسٹیج میں. تو ایکسپیرینس کو زیادہ آپ پریفرنس دیں گے یا کوالیفیکیشن کو، یا بوتھ؟ دیکھیں کوالیفیکیشن بھی ہے آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اگنور تو ہم اس کو بھی نہیں کر سکتے. کوالیفیکیشن کے بغیر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے نا. لیکن ایکسپیرینس زیادہ ریٹ دیں گے؟ بہت، میں اس کو ریٹ دیتی ہوں. اس لیے ریٹ دیتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ جو ایک سینسیبل بندہ ہے نا، زندگی کا ہر ایکسپیرینس آپ کو کچھ سکھا کے جاتا ہے. اینڈ اف یو آر انیبل ٹو لرن فرام یور ایکسپیرینسز تو آپ شاید اتنے سینسیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں، اور پرٹیکولرلی ہماری یوتھ بھی، ہمیں ہر ایکسپیرینس کو میں انڈلج ہونا ہے، اس کو اینالائز کرنا ہے. چاہے بہت چھوٹا ایکسپیرینس، آپ ٹرین پہ جاتے ہوئے کسی کے ساتھ آپ نے بات ہی کر لی، رستے میں آپ پریزنٹیشن کسی قسم کی بھی ہو، چاہے وہ 2 سیکنڈ کی پریزنٹیشن ہے، چاہے وہ 2 منٹ کی ہے، تو زندگی کا ہر ایکسپیرینس آپ کو کچھ سکھا کے جاتا ہے. لائف از اے سیریز آف پریزنٹیشن. یس بالکل. اور اگر آپ نے لائف سے کچھ سیکھا نہیں، اپنے ایکسپیرینسز سے کچھ سیکھا نہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ شاید اپنے ساتھ بھی انٹرسٹ، یعنی وہ ہر پریزنٹیشن سے آپ کو امپروو کرنا ہے. یہ نہیں ہو کہ وہ پریزنٹیشن میں آپ کی غلطیاں رہ گئی آپ پھر وہی ریپیٹ کرتے رہیں. جی جی. تو وہ آزمائش تو آئے گی کہ آپ نے آپ کو اس میں کیسے ڈالا. بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہو گیا میم. یہ اچھا یہ بھی میم بتائیں کہ آپ کا جو آپ جو ہے وہ کس پہ زیادہ چاہیں گے بھروسہ کرنا یا ہائر کرنا؟ اگر ہائرنگ کا آپ کو ٹاسک دیا جائے کہ آپ اپنے اسمارٹر لوگوں کو ہائر کرنا چاہیں گی یا ایوریج بھی لے کے انہوں ٹرین کر لیں گی ایز اے لیڈر؟ دیکھیں اب لائف جو ہے نا وہ بہت فاسٹ ہو چکی ہے. آپ کے سامنے لائف بہت فاسٹ پیس پہ چلتی ہے. ویسے میں خود بھی اسمارٹ ورکر ہوں، میں ملٹی ٹاسکر بھی ہوں اور اسمارٹ ورکر بھی ہوں. تو آئی وڈ پریفر کہ اب یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ جاب کی نیچر پہ، جاب کی نیچر کیا ہے. اگر جاب کی نیچر ایسی ہے جہاں پہ اسمارٹ ورکر آپ کو چاہیے، جہاں پہ آپ کو ملٹی ٹاسکر چاہیے، تو وہاں پہ آپ کو ملٹی ٹاسکر کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. لیکن اگر ہم یونیورسٹی کی ابھی بات کریں ہائرنگ میں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے اب یونیورسٹی میں، آپ بھی یونیورسٹی میں ہے، ہمیں ٹیچنگ بھی کرنی ہے، ہمیں اکیڈیمیا کو بھی لے کے چلنا ہے، ہمیں بچوں کی ٹریننگ بھی کرنی ہے، ہم نے ریسرچ بھی کرنی ہے، اور اب ہم سوشل سروس کی بھی طرف جا رہے ہیں. سوشل سروسز بھی ہم نے کرنی ہے، ہم نے یونیورسٹی کو بھی بالکل صحیح ہے، اس کو بھی اوپر لے کے جانا ہے، اس کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. پھر آگے سسٹینیبل گولز اتنے زیادہ ہیں، ہم نے ان کی طرف بھی توجہ. سسٹینیبل گولز لائف جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، اب ہمیں لائف کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو گیا. ہمیں بہت سی چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس زمانے میں اسمارٹ ورکر جو ہے نا وہ ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے. لیکن جو ایوریج ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے نا، آپ اگر آپ اس پہ بلیو کریں تو انسان، میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات یہ ہے کہ انسان کا کمپٹیشن کسی اور مخلوق سے نہیں ہے، سب سے سپیریئر. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ ایبلٹیز دی ہیں جو کسی کو نہیں دی ہوئی. اس میں جو ہماری ایبلٹیز ہمیں لوور آرڈر آرگینزم سے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں وہ ہے ہائر آرڈر ایگزیکٹیو کوگنیٹیو ایبلٹیز. جی میم تھوڑا سا ہمیں لے مین کو بتائیں گے کہ کیا یہ اس میں کیا معاملہ لوئر آرڈر اور ہائر آرڈر؟ لوور آرڈر آرگینزم وہ ہیں جو سارے جانور اور باقی جو، یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے نا، تو ہمارے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ لوور آرڈر آرگینزمس ہیں. ہم جو ہیں وہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم ہائر آرڈر آرگینزمس ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا اب جو ہم ہائر آرڈر ہیں تو ہم کیوں ہائر آرڈر ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی نا بہت ہائر لیول کی ایبلٹیز دی ہیں.
हायर एग्जेक्टिव कॉग्निटिव एबिलिटीज उसको हम कहते हैं, एग्जेक्टिव एबिलिटीज। ये इसमें है कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, आप जो मेल एडेप्टिव इमोशंस होते हैं, सोचें होती हैं, अटेंशन होती हैं, उनको हम इनहेबिट कर सकते हैं। मेल एडेप्टिव को हम कह देंगे मनफी सोचें, मनफी सोचें आप कह लें, जो हमारे सोशल लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, हमारे अपने लिए अच्छी नहीं है, उनको हम इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, और उसकी जगह हम पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस को लेके आते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं। ये इनहिबिशन होता है। इस तरह हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है। इसके अलावा हमारे जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटीज होती है, डिसीजन मेकिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल थिंकिंग की, बिल्कुल सही। ये लेवल, इसको हमने ट्रेन भी करना होता है। ये जितना हमारा मैच्योर होता जाता है उतने ही हम ज्यादा हमारी इमोशनल मैच्योरिटी अच्छी होती जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, सारी चीज़ें और आपके सक्सेस की तरफ ये लीड करती हैं। मैम आपकी तहकीक, आप टीचिंग और रिसर्च में जो है ये आपका अब साबित हो रहा है कि पैशन है या स्ट्रेस है? टीचिंग और रिसर्च आप तहकीक कर रही हैं, ये आपका पैशन है या मेरा आप स्ट्रेस लेती हैं? मेरा पैशन है। वो तो हमें वैसे क्लियर हो रहा है आपके ट्रैक रिकॉर्ड से। वो हम बस एक दफा क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा था ये क्वेश्चन पूछें तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा पैशन है। यानी मैं क्योंकि इसके साथ लव है, आपकी उनसियत लग रही है, मैं फिर ही रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं। मैं अपनी लाइफ में जो है ना वो अपने पीस ऑफ माइंड को की कॉस्ट पे कुछ नहीं करती। एक फैमिली लाइफ की कॉस्ट पे और एक पीस ऑफ माइंड की कॉस्ट पे कुछ नहीं करती। मैं अपनी इन चीज़ों को मेंटेन रख के आगे चलती हूँ, और ये मेरी बिल्कुल अपनी चॉइस है। और इसमें कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है कि यूनिवर्सिटी की स्ट्रेस की वजह से हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो सोशल कम्युनिटी सर्विस आपने अभी बताया, इसका मतलब वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैम, ये बताना चाहेंगे कि सब्र की कोई हद होती है? वो कहते हैं ना सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, या नहीं होती? सब्र की हद होती भी है, और लेकिन ये कि सब्र आप कितना कर सकते हैं ये आप लर्न भी करते हैं विद एक्सपीरियंस। जो आपने अभी कहा है वहाँ जी, प्रेजेंटेशन आप एक्सपीरियंस करते हैं। सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम हर चीज़ को एब्रप्टली, ब्लंटली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। और ये जैसे अभी मैंने आपको अपनी मैच्योरिटी की भी बात की है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग की भी बात की है, इंसान के हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म होने, अशरफुल मखलूक़ात होने की भी बात की है। तो ये हमारे हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म होने के साथ अटैच है, इसलिए अल्लाह ताला ने आपसे कहा है कि आपने सब्र करना है। लेकिन सब्र का दूसरी तरफ ये मतलब नहीं है कि आपने हर एक की जो है ना वो जितना मर्जी आपको कोई टीज करता जाए और आपने उसको सब्र से ही बर्दाश्त करना है। आपने हैंडलिंग पीपल आ गए ना, हैंडलिंग पीपल भी, यस, वो हर तरह के लोग होंगे, यस बिल्कुल, तो वो भी सीखना है। जी जी। इन्फ्लुएंस बाय टीम इरविन, तो उन्होंने एक जगह पे लिखा हुआ है कि आजकल के जो मैनेजर्स हैं वो क्या चाहिए उनको कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस लेके आना है ना तो उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए वर्ड्स ऑफ लाइफ पे या वर्ड्स ऑफ डेथ में। तो आप किस पे बिलीव करती हैं? देखिए लाइफ जो है ना वो, मैं तो पॉजिटिविटी पे बिलीव करती हूँ। तो वर्ड्स ऑफ लाइफ जो है ना वो आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों को इनकरेज करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। ये चीज़ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। देखिए वर्ड्स ऑफ डेथ जो है ना वो ज़ाहिर है वो आपके लिए डिवेस्टेटिंग होते हैं, और वो आपको यानी आपको ज़ाहिर सक्सेस की तरफ तो नहीं लेके जाते, वो तो फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। तो वर्ड्स ऑफ लाइफ पे आई बिलीव। तो मैम आप हीलर, यानी आप कहती हैं आप हीलर होने में बिलीव ज्यादा करती हैं, किलर में नहीं? नहीं, किलर में तो हो ही नहीं सकता, सक्सेस हो ही नहीं सकता। और एग्रेसिव मैनेजमेंट स्टाइल को प्रेफर नहीं करती हैं आप, इनकरेजमेंट और एप्रिसिएशन स्टाइल को। अच्छा ये मुझे मैम बताएं कि आप जो है वो किस तरीके से देखती हैं कि जब आपका एटीट्यूड ऐसा रहा है कि आप हर वक्त क्रिटिसिज्म, कंप्लेनिंग, कंडेमिंग ये करती रही हैं कि वाइस वर्सा है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिटिसिज्म और क्योंकि लोग आजकल ये होता है तनकीदी हो गए हैं, मजम्मतें करते रहते हैं। मैं अगर मेरे इर्द गिर्द जब लोग मेरे पास इस तरह से ज़ाहिर कोई बात करते हुए तो उनको समझाती हूँ लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज वेरी स्मूथ फॉर एवरीवन। किसी के लिए भी नहीं। जो हमारे से ज़्यादा कमाते हैं या हमारे से अपर लेवल पे हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे, मैं तो बिलीव नहीं करती कि वो हमसे ज़्यादा खुश हैं। यानी लाइफ इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द मनी, ऑल्दो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ नीड्स, वो बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हर वक्त कंप्लेनिंग रहना। हर बंदा जो है ना अपने लाइफ में डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, हमने मैनेज करना है अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपने आप को। तो कंप्लेनिंग होना जो है ना वो आपकी लाइफ को
मुश्किल में डालता है, थैंकफुलनेस की failure तरफ जाना बेहतर है, शुक्रगुजारी की तरफ जाना बेहतर है, शुक्रगुजारी की तरफ, और जो है ना उसको एडजस्टमेंट की तरफ जाना, जो हमारे पास है हमने उसको वाइजली किस तरह से, इमोशनल स्टेबिलिटी वो जरूरी है, जज्बाती, बिल्कुल उसके साथ एडजस्टमेंट जरूरी है, एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, यानी जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उसको अपने अपनी वेलबींग के लिए किस तरह से यूज करना, रादर देन कि जो रिसोर्सेज हैं उनको फोकस नहीं करना और जो नहीं है उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैम ये बताना चाहेंगे कि आपका पूरा प्रोसेस लाइफ का रहा है, अब खास तौर पे आप ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई, तो लोगों को जब आपसे मिलने आते हैं तो आपका बिलीव है कि उनको तवज्जो फुल देनी चाहिए कि पार्शल? जी, आपको तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन ये कि समटाइम ऐसा होता है कि जहाँ पे तवज्जो की इतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वाइजली, यस बिल्कुल एग्जैक्टली, जहाँ पे तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है आप वहाँ पे फुल तवज्जो दें। लेकिन चूंकि हमारे पे आपको पता है लाइफ बड़ी फास्ट होगी, फास्ट पेस के साथ टाइम के हिसाब से, तो हमने बहुत से काम कर प्रायोरिटीज के हिसाब से, तो ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी प्रायोरिटीज की कॉस्ट पे हमने लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है। तो जहाँ पे जरूरत है तवज्जो देने की वहाँ पे जरूर दें। पर्टिकुलरली हमारे स्टूडेंट से आते हैं, जब वो इमोशनल नीड्स के साथ आते हैं तो हम उनको बहुत तवज्जो देते हैं और वो उनका राइट भी है। आप, मैं चाहूँगा मैम, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये राउंड हमारे साथ किया, इसको बल्कि हमने डिटेल में कर लिया क्योंकि इट्स अ कन्वर्सेशन स्टाइल, हम लोग रूटीन में कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं दिल से बात करें, आप तक जो है वो हम ट्रुथ ऑनेस्टी के साथ बात करें और रिस्पेक्ट के साथ बात करें, कोई ऐसा ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो ये चीज़ें कुछ हमने इनसे क्वेश्चंस पूछे जो हमारे जहन में आए, हमारी टीम ने जिसको कहा और हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछें इन पर्सनैलिटी से। तो मैं आप चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफ हम ना इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड मैडम से पूछते हैं कि बचपन, टीनेज, एडल्टहुड तक का सफ़र। जी, आपका ब्रीफ बैकग्राउंड है। जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र बहुत एक आम इंसान की हैसियत से स्टार्ट किया था। हम पतोगी में रहते थे, बहुत एक आम सी ज़िंदगी थी, खूबसूरत ज़िंदगी थी, लाइफ में सब कुछ ठीक था, ठीक से मुराद है कि नॉर्मल था, यानी आपको खाने पीने की माश की फ़िक्र ऐसी नहीं थी, वो चीज़ें ईजीली अवेलेबल थी। एक आम से प्राइवेट स्कूल में दाखिला लिया और लेकिन बड़ा खूबसूरत वो 10 साल जो मैट्रिक वहाँ से किया बहुत खूबसूरत था। अपनी स्कूल लाइफ में बहुत आउटवर्ड सी, बड़ी एक्सट्रोवर्ट सी स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन एक मेरी लाइफ की क्वालिटी जो शुरू से रही थी, मुझे खुद भी अपनी इस क्वालिटी की पहचान नहीं थी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे पहचान आई कि आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल। जो टास्क मुझे मिल गए थे, मिले होते थे या जो मैंने करने होते थे, चाहे वो एकेडमिक टास्क है, चाहे वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का टास्क है या टीचर्स ने कह दिया, पेरेंट्स ने कह दिया, जो मुझे टास्क असाइंड होते थे, आई वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल। मुझे किसी को दोबारा कहने की, टीचर्स को या पेरेंट्स को कहने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी कि आपको ये असाइंड टास्क था और आपने नहीं किया था। आई वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग मैं बहुत होती थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि मैं किताबी कीड़ा नहीं थी कि हर वक्त मैं किताबें पढ़ती रहती थी। मैं स्कूल में बहुत जॉली होती थी, मैंने क्लास में जो है ना वो टीचर से पूछ के कभी पानी पीने जा रहे हैं, कभी वॉशरूम जा रहे हैं, और जब मैं पानी पीने वॉशरूम जाती थी तो जो अर्लियर जितनी भी टीचर्स होती थी ना 7th 8th जिनसे मैंने पढ़ा होता था, सबसे गपशप लगा के सलाम दुआ करके फिर मैं वापस आती होती थी। तो मेरा एक इमेज ये भी था, बल्कि ऐसा एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। जी मैं कि मैं मैट्रिक में थी और कुछ ही महीनों बाद हमारे एग्जाम्स हो जाने थे मैट्रिक के, तो हमारी एक नई टीचर क्लास में, उनके लिए चेयर की ज़रूरत थी, तो वाइस प्रिंसिपल बैठी हुई थी बाहर ग्राउंड में, उनके पास 2-3 चेयर्स थी। मैं भाग के गई और फटाफट भाग के चेयर्स उठा के लाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे वहीं पे पकड़ लिया और मुझे ना थप्पड़ भी लगाया। उस जमाने में ये बहुत नॉर्मल था, ठीक कह रहे हैं, और एक्सेप्टेबिलिटी भी थी और प्यार की अलामत समझा जाता था। लेकिन ये कि मुझे उससे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती की थी, मुझे जाना चाहिए था, उनसे एक्सक्यूज़ करके पूछ के फिर चेयर उठानी चाहिए थी। मुझे उस वक्त इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। अदब के तकाज़े थे कुछ। जी, अदब का तकाज़ा, लेकिन ये कि वो शायद वो अदब की लर्निंग का लेवल अभी हमारा थोड़ा सा कम था, तो जब उन्होंने लगाया उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे ऐसे करना चाहिए था। तो मैंने वहाँ से ये लेसन लर्न किया। कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि ज़ाहिर एग्ज़ाम्स हो गए और मैंने अपने स्कूल में टॉप किया। तो जब उनको बताया गया ना कि टॉप किसने किया, यानी ज़ाहिर रिजल्ट अनाउंस हुआ, मैं उस वक्त स्कूल में मौजूद तो नहीं थी, तो मेरी टीचर्स ने बताया था कि ये वो स्टूडेंट थी जिसको आपने थप्पड़ लगाया था। कहती थी है, मैं तो समझती थी वो बिल्कुल ऐसे घूमने फिरने वाली और आवारा सी लड़की है। देख लें, इमेज चेंज हो गया एकदम, वो अभी तक वही था। तो लेकिन ये कि मैं इस तरह से घूम फिर के आती थी, टाइम भी बाहर लगा लिया करती थी गपशप में दोस्तों सहेलियों के साथ, मुझे कभी सजा नहीं मिली थी। उसकी वजह ये थी कि मैंने अपने काम में कभी कोताही नहीं की थी, रिस्पॉन्सिबल थी। सो टीचर्स को मेरा पता था कि ये अपना काम कर लेगी और इसने कर लेना है।
تو چونکہ وہاں پہ ان کو کمپلین نہیں ہوتی تھی تو اس طرح کی چیزوں پہ وہ آل ہمارے اسکول میں ڈسپلن جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ڈسپلن ہوا کرتا تھا، لیکن یہ چیزیں بھی ہم نے اسکول سے ہی سیکھی. تو اس کے بعد جی میٹرک کیا، میٹرک کے بعد پھر میں نے ایف ایس سی کی لاہور کالج سے. اور اس میں ایک چیز میں بتانا چاہتی ہوں اپنے سفر میں، یہ ہماری سب یوتھ کے لیے ایک میسج بھی ہے. ظاہر ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، پہلے بھی یہی ٹرینڈ تھا، اب تھوڑا سا پہلے یہ ٹرینڈ تھا کہ ساری دنیا نے جو ہے نا وہ ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہے نا وہ ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ آپ نے کمپیوٹر سائنٹسٹ بننا ہوتا ہے. جی جی جی. اور دنیا کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ سکسیسفل پروفیشن کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہم سب کے سامنے میں نہ ڈاکٹر ہوں، نہ میں انجینئر ہوں، نہ ہی میں کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں، لیکن میں سکسیسفل انسان ہوں الحمدللہ. تو یوتھ کو میں یہ میسج بھی تھوڑا سا دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں سکسیس صرف ڈاکٹر بننے یا انجینئر بننے کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہوتی. دنیا میں صرف ڈاکٹرز اور انجینئر سکسیسفل نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، بہت سوشل سروسز دے رہے ہیں، صحافی ہیں، آرٹسٹ ہیں، کاشتکار ہیں، محنت کش ہیں، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، بزنس مین، پائلٹ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو سکسیسفل فوجی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے اس وقت عام لوگوں کی طرح میرا بھی یہ تھا جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن اب تو میں اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں ڈاکٹر نہیں بنی. یعنی ڈاکٹر بننے کے ساتھ جو شاید جو اس کی ریکوائرمنٹس تھیں، میری فیملی لائف کی بھی رسپانسبلٹیز رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اس کے ساتھ وہ اپنی میٹ اپ نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے. تو لیکن اب میں جس پروفیشن میں آئی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بلیسنگز رکھی اور مجھے ایک اچھی طرف لیڈ کیا. تو میں نے پھر خیر ڈاکٹر نہیں بن پائی ایف ایس سی کے بعد. تو اس کے بعد جو میرا سیکنڈ مجھے جو اچھا لگتا تھا وہ سائیکالوجی اچھا لگتا تھا کہ اس میں آپ نفسیات کو جانتے ہیں، لوگوں کو سمجھتے ہیں، ایموشنس کو، فیلنگس کو. پھر میں نے سائیکالوجی کو ایز اے سبجیکٹ آپٹ کر لیا. پہلے بی اے میں بھی میں نے الیکٹیو سبجیکٹ لیا. اس کے آپ نے کہاں سے کیا تھا؟ بی اے میں نے پتوں کی کالج سے کیا، اور تب بھی میں نے اپنی کالج میں ٹاپ کیا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں اپلائیڈ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ آف اپلائیڈ سائیکالوجی میں داخلہ لے لیا. کافی میرٹ ہوتا ہے. بالکل. جی الحمدللہ بہت اچھے گریڈس کے ساتھ وہاں سے اپلائیڈ سائیکالوجی میں پڑھا. اس کے بعد پھر میں نے پی ایچ ڈی بھی پنجاب یونیورسٹی سے ہی کر لی. اور یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگ جو ہوتا ہے کہ جب ایف ایس سی میں میڈیکل کی طرف نہیں جا پاتے تو سائیکالوجی کو شاید اس لیے بھی آپ کر لیتے ہیں کہ اب ہم کلینکل سائیکالوجسٹ بن کے تو ڈاکٹر بن جائیں گے. تو میں امپورٹنٹلی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت میں ٹاپر اسٹوڈنٹ تھی، اور ہماری یونیورسٹی میں ٹاپ 5 کو جو ہے نا وہ کلینکل ایز الیکٹیو لینے کی اجازت ہوتی تھی. لیکن یہ کہ میں نے خیر اس وقت الیکٹیو لے لیا، لیکن ہاسپٹل میں جاتی تھی، میں بڑی سینسٹیو تھوڑی سی نیچر میں ہوں. تو جب وہاں پہ آپ نے سائیکولوجیکل پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، ان کی اتنی سفرنگس کو دیکھتے ہیں، تو میں کافی سینسٹیو تھی. میں نیگیٹیوٹی آپ کو بھی آ جاتی ہے. ہاں، نیگیٹیوٹی نہیں، لیکن میں اسٹریسفل اس لیے رہتی سن کے ان کے دیکھ کے. ہاں، اتنے دکھ ہیں، میں بہت پریشان رہتی تھی. پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتی، تو میں ٹیچنگ لائن میں آ گئی. اور ٹیچنگ لائن میں آنا میرا جو ہے نا وہ موٹیویشن تھا، اور الحمدللہ میں نے اس کو بڑے موٹیویشن، یہ کوئی کمپلشن نہیں تھی. کتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ میم ٹیچنگ میں؟ 20-25 سال ہو گئے. جی میں نے 2005 میں اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا تھا. 2005 میں ایز اے لیکچرر سلیکٹ ہوئی تھی پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ماشاءاللہ. اور اس میں ماشاءاللہ سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا جاب کا بھی کوئی پلان نہیں تھا. میں نے ماسٹرز ابھی فریش کیا تھا، اور ساتھ ہی پبلک سروس کمیشن کی سیٹس اناؤنس ہو گئی تھی نا. اب میں لاہور میں رہتی تھی، اور چونکہ ہماری فیملی میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لڑکی نے نا شہر سے باہر جا کے کوئی جاب کی ہو. جو سیٹس اناؤنس ہوئی تھی وہ لاہور سے باہر کی سیٹس تھیں. تو میں نے اپلائی نہیں کیا تھا، لیکن میں اپنی کلاس فیلوز کو سب کو کہتی تھی بڑی اچھی اپرچونیٹی آپ اپلائی کر دیں. تو وہ سب نے مجھے یہ کہا کہ آپ ہمیں تو کہہ رہی ہیں تو خود کیوں نہیں کر رہی. تو بہت سی دوستوں نے کہا کہ آپ بھی اپلائی کر دیں. تو میں نے صرف اس چکر میں اپلائی کیا تھا کہ چلیں مجھے ٹیسٹ انٹرویو کا اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے جس کو آپ کہتے ہیں آزمائش یا کوئی پریزنٹیشن میں آئے تو صحیح بندہ لرننگ ہو جائے. تو میں نے کہا چلیں لائف میں اگر کبھی جاب کی ضرورت پڑی تو مجھے اندازہ ہوگا. تو وہ ماشاءاللہ سے پھر انسپریشن آپ کو ملتی ہے نا. پھر ایسا ہوا کہ جب میں نے اپلائی کر دیا، آخری کلوزنگ آور تھے جب لاسٹ ڈیٹ تھی، اور میں نے فارم جمع کروا دیا. میری قسمت میں تھا تو وہ پروسیس بتائیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو وہ میری قسمت میں تھا، تو میں نے کلوزنگ آور میں بینک کلوز ہوتے ہوتے میں نے نا فارم جمع کروایا. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہوا، اور ٹیسٹ میں جب مجھے خبر ملی ماشاءاللہ سے نا ہمارے کوئی 9000 کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے ٹیسٹ. بعد 2005 ہاں اس وقت یعنی 4 میں حالانکہ بازی کم تھی اس وقت. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس وقت 9000 کینڈیڈیٹس تھے صرف سائیکالوجی کے اپلیکینٹ جو تھے، اور 22 سیٹیں تھیں اس کے. اور جب مجھے
पता चला कि टेस्ट में मेरा टॉप था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मुझे भी नहीं पता था जी इनको बुलाने से पहले। जी, इससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली, फैमिली ज़ाहिर है बहुत खुश हुई। और फिर जब मुझे पता चला खुशी की तो बात थी। ज़ाहिर नाना अबू और बहुत सब लोग बहुत खुश हुए कि हमारी बच्ची माशाल्लाह से इतनी टैलेंटेड है। मुझे खुद भी इंस्पायरेशन मिली उससे। फिर मैं इंटरव्यू के लिए भी चली गई, इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, पोस्टिंग के आ गया, लेटर आ गया। और अल्लाह ताला पे मैं इतना बिलीव करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि मैंने पूरी कन्वर्सेशन में अभी तक अल्लाह ताला का ऐसा चांस नहीं मिला। अल्लाह ताला जब आपके साथ होते हैं ना, देखिए मैं गुड फेथ तो जरूरी है यहाँ। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि अल्लाह की ट्रस्ट पे, अल्लाह पे ट्रस्ट किए बगैर आप आगे नहीं चल सकते। और मैं अभी भी इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला अगर मेरे साथ ना होते, उनका करम, उनका रहम, यानी अपने ऊपर सर्टन होना तो ठीक है, अल्लाह के साथ ट्रस्ट भी, दोनों। यस, बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आपको अल्लाह ताला पे बिलीव है कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान कर सकते हैं, तो अगर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान कर सकते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसमें हर्डल बन नहीं सकती। ये गुड फेथ जरूरी है, ईमान जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन हेल्थ से भी इम्पोर्टेंट है, हैंडलिंग पीपल से भी इम्पोर्टेंट है, और तमाम डिस्कशन से। ट्रस्ट इन अल्लाह करीम। देखिए आपको ये बिलीव करना चाहिए कि अल्लाह ताला कादर मुतलक है, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन, अल्लाह व निअमल वकील, कनेक्शन डेवलप करें। हाँ। और मैंने बहुत सी चीज़ों से वो कनेक्शन डेवलप किया है, वो मैं आपको आगे भी एक तजर्बा बताती हूँ जहाँ से मैंने अल्लाह ताला को पहचाना। यानी वैसे तो जनरली हम कहते हैं कि अल्लाह ताला है, हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह है, ये है, लेकिन मैंने अल्लाह ताला की ज़ात को पहचाना, वो मैं अभी बताती हूँ। एक इवेंट हुआ था मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा इवेंट था जिसने मुझे काफ़ी चेंज किया। तो खैर उसके बाद जो है ना मैं इंटरव्यू में भी अपीयर हो गई, और अल्लाह ताला की ऐसी सपोर्ट थी कि मेरी शादी उस वक्त डेट फिक्स हो गई। जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, मेरी डेट फिक्स हो गई हुई थी, और मैंने जिस शहर में जहाँ था वहाँ पे सीट थी। अच्छा, जबरदस्त। तो माशाल्लाह से जो है ना मेरी शादी के डेट फिक्स हुई थी, और 15 दिन पहले मैंने अपनी ज्वाइनिंग उसी शहर में जिधर शादी। ओह जबरदस्त। तो बहुत रेयर होता है। 15 दिन पहले जो है ना वो ज्वाइनिंग दी, और 15 दिन बाद मेरी शादी हो गई, और वहीं पे मैंने फिर 8 साल सर्व किया। और पत्तों की में मेरी शादी हुई थी, पोल नगर 20 मिनट की ड्राइव था, तो पोल नगर में मेरी पोस्टिंग हुई थी। 8 साल मैंने वहाँ पे सर्व किया, बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे भी गुजारा। और उसके बाद फिर ये है कि मैंने PhD मेरी कंप्लीट हो गई थी। फिर मुझे कॉमसेट से 2-3 दफ़ा हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शाजिया सनती उनकी कॉल आई थी, वो मुझे बुलाना चाहती थी। फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी मेरा जितना टाइम गुजरा है बहुत अच्छा। और आई ऑलवेज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह अलमाइटी। और उसके बाद जो है ना वो ज़ाहिर है जिस इंस्टीट्यूट में हूँ, जहाँ पे मेरा रिस्क मुझे मिलता है, मैं उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट हूँ। नहीं, इसमें तो हमारी टीम और हम लोग भी, यानी कि नहीं, मैं भी कॉमसेट से हूँ, तो ये मैं चाहूँगा कि ये मैं इसको एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि मैं भी इनके साथ ही HOD भी रहा था, तो उस वक्त भी देखा है। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो बाकियों की निस्बत इन्होंने माशाल्लाह अपने डिपार्टमेंट को काफ़ी बुलंदी तक पहुँचाने में जो है ना मददगार साबित हो रही हैं, और वाकई लॉयल हैं अपने अदारे के साथ, और जब भी यहाँ अवेलेबल रहती हैं। थैंक यू सो मच। मैं एक वो वाक़े का जिक्र करना चाह रही हूँ जिससे मुझे अल्लाह ताला ने पहचाना। हमारे यूथ के लिए, ताकि ये सारी गुफ्तगू प्लीज़ इसमें मेनली फोकस जो है हमारे यूथ है और हमारी ऑडियंस है, लिसनर्स हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आए। इससे पहले बस ये कि मैं एक जनरल एक अच्छी मुसलमान आप कह लें बनने की कोशिश करती थी, यानी अल्लाह ताला पे बिलीव भी था, नमाज़ें भी पढ़ लेनी, और जब आपको कोई ज़रूरत होती है तो अल्लाह ताला से दुआएं भी मांग लेती थी। लेकिन ये कि मुझे इस वक्त तक अल्लाह ताला की जो हकीकी ज़ात है ना, अल्लाह ताला क्या है और क्या कर सकते हैं, मुझे उसकी पहचान नहीं थी। 2017 में ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड बहुत यंग ज़ाहिर थे, अभी हमारी शादी को 12 साल हो गए थे। अचानक से उनको जो है ना वो कार्डियक अरेस्ट हो गया, अचानक से। यानी हम घर में रूटीन लाइफ में हम कोई कर रहे हैं, पता नहीं था, कोई पहले पता नहीं था, बस हल्की सी उनको चेस्ट पेन स्टार्ट हुई। उससे पहले कोई मसला नहीं था, कुछ मसला नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। अचानक से उनको हल्की सी चेस्ट पेन स्टार्ट हुई, और उनको ये भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना मसला होगा। खुद ही वो ड्राइव करके हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में गए हैं तो जाते साथ वो कोलैप्स हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। और ये इतना बड़ा मौजज़ा था कि 55 मिनट्स के तक उनका हार्ट बीट नहीं चली। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 1 घंटे तक अगर आपका हार्ट बीट नहीं चलती, सांस नहीं चलता, तो किस्म का और लेकिन ये कि उसके बाद जो है ना वो उन्होंने रीगेन किया। फिर 2-3 दिन 6 दिन हॉस्पिटलाइज रहे थे, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो बड़ी कड़ी आजमाइश है जो आप बताना चाह रहे हैं। और वो जो 2-3 दिन थे ना, और पर्टिकुलरली वो जो घंटा, मतलब जैसे ही मुझे फ़ोन मिला आया, मैंने इन टच थी, ज़ाहिर है मुझे पता चला, तो 10 से 15 मिनट में मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, और ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। यानी आपने कभी सोचा नहीं कि एकदम ऐसा हो जाएगा। और बच्चे मेरे बहुत छोटे थे अभी। और उस वक्त जो है ना वो, जब मैंने उस वक्त जिस बिलीव के साथ मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी,
यानी आप देखेंगे कि बंदा इज नो मोर इन द वर्ल्ड, हाँ बिल्कुल, ठीक है? एग्जैक्टली नो मोर इन द वर्ल्ड। एंड सब उस वक्त सिर्फ मेरा एक ही बिलीव था कि अल्लाह ताला ये सिर्फ तेरे इख्तियार में है, ये सिर्फ तू कर सकता है। यानी वो 5-6 दिन या जो भी वो पहला तो वक्त था। घंटा, हाँ, पहला वो important एक है। घंटा हाँ, जहाँ पे उनका 55 सांस नहीं minutes, चला, हाँ। जहाँ पे उनकी हार्ट बीट नहीं चली, और डॉक्टर्स की टीम तो ज़ाहिर है मेरे सामने में बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सामने थी, ठीक हो रहा है। इमरजेंसी में मैंने लम्हा बिल्कुल ठीक जी, है, जी। I see। तो मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, वो भी वहीं पे थे। तो बस उसमें एक चीज़ मैंने सिर्फ अपने अल्लाह ताला से ये दुआ की, और दूसरा मेरे देवर साथ थे, उनसे मैंने कहा कि अपनी बहनों को बताएं जरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह बताया जाए, हाँ, ये देखिए हमने अब रिश्तों की कॉस्ट पे ना चीज़ों को एट द सर्विस ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ हम अदर, जो है ना, जी, अपने जी, मकसद पूरे कर रहे हैं। मकसद पूरे कर रहे हैं, ये नहीं ऐसा नहीं हाँ। होता। तो मुझे सिर्फ ये था कि जो अपनों के दिल से दुआ निकलती है ना, और किसी के दिल से क्योंकि उसको जिस दुआ दर्द चाहिए, से, हाँ। तो मैंने कहा सिर्फ उनको फोन कर दें, जिस तरह से वो दुआ करेंगे हाँ, उस तरह से कोई नहीं। बेशक, बाप को और बहनों को बेशक। खैर ज़ाहिर उन्होंने भी दुआ की, और मैंने सिर्फ एक ये बिलीव रखा कि या अल्लाह, ये इस वक्त जो है ना, इसको दुनिया की कोई ताकत बेशक, उनको जो है ना वो सलामती नहीं दे सकती। बिल्कुल, सारे सिर्फ रिसोर्सेज जो फिजिकल मटेरियल वो अवेलेबल है, लेकिन दो फिर उसके बाद उनका जो है ना वो ज़ाहिर हार्ट बीट चलना शुरू हुई, फिर उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया। अभी भी ज़ाहिर अनसर्टेनिटी तो थी कि अभी ये पता नहीं आज की रात निकालते हैं नहीं निकालते। तो खैर उसके बाद एक रात गुजर गई, उसके बाद अगली रात गुजर गई, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। वो जो 2 दिन थे ना, वो सिर्फ मैंने उस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात को पहचाना, अल्लाह ताला क्या कर सकती हैं, और अल्लाह ताला पे आपका जो ट्रस्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट। इफ़ यू ट्रस्ट इन अल्लाह ताला, और मेरा उस वक्त जो है ना वो 100% ट्रस्ट सिर्फ अल्लाह पे था। मेरी तो जो सिर्फ अल्लाह ताला पे थी, और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ। उस वक्त मुझे ये उस वक्त एहसास हुआ, उससे पहले मुझे शायद रिश्तों का भी इतना एहसास नहीं था। मैं उस टाइम पे सिर्फ मैं थी और मेरा रब था, और कोई नहीं था। मुझे उस वक्त ये नहीं फिक्र थी कि दवाइयाँ कौन लेके आएगा, वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे भाई थे माशाल्लाह से, मेरी सपोर्ट में मेरी पूरी फैमिली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी मेरी 1-2 कोलीग्स गई थी, परेशान थी ज़ाहिर है। जी जी बिल्कुल। तो जब वहाँ पे जाके उन्होंने देखा मेरा सपोर्ट सिस्टम देखा, तो वो तसल्ली से आ गई थी कि मुझे अब हमें वहाँ पे जाके ये रियलाइज़ हुआ कि वो अकेली नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। मुझे ये नहीं पता था कि पैसा 6 दिनों में तकरीबन 10-12 लाख लग गया। मुझे नहीं पता था वो पैसा कहाँ से आया और किसने लगाया, आई डोंट नो। ऑटो पे मुझे और किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी ने पूछा नहीं। अच्छा, ये सपोर्ट सिस्टम है। उस वक्त मुझे पता चला कि ज़िंदगी में सपोर्ट सिस्टम और आपके इर्द गिर्द के रिश्ते और आपके लोग कितने इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए उस वक्त अगर मुझे ये फिक्र होती कि ये पैसा कहाँ से आएगा, मैं तो अपनी लाइफ में ऐसी हूँ कि मैंने कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा। यानी घर में कोई भी नीड होती है, बड़ी नीड होती है, मैंने कभी नहीं सोचा। ये सब कुछ मेरे हस्बैंड खुद से करते हैं, लेकिन उस वक्त वो भी नहीं थे मेरे साथ। और सेंसिटिविटी भी आपने बताया, आप सेंसिटिव भी बहुत थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए बहुत मुश्किल हो मुझे ये नहीं पता था कि उस वक्त अगर मुझे ये सोचना पड़ता कि अब मैंने पैसे कहाँ से अरेंज करने हैं, तो पता नहीं कितनी बड़ी बात होती मेरे लिए। लेकिन ये कि जो भी कज़न, भाई, मामू जो भी आए, सब अपने पास बैगों में पैसे डाल के लेके आए, और उन्होंने मुझसे ये पूछा, तो मैंने कहा मुझे अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो पूछ लेंगे। बस जो भी अपना सपोर्ट सिस्टम, बहन भाई जो थे, बड़ी बात है, उन्होंने किसने कहाँ से अरेंज किया मुझे नहीं पता, एज अ ड्यूटी लिया उन्होंने, बड़ी बात है, मोहब्बत और उल्फत है उनकी। ये तो बस ये मुझे उस वक्त लगा कि ये अच्छा ऐसी जो चीज़ है ना, ऐसी मोहब्बत आपको कभी मुझे लगता है कि ये थाली में डाल के कभी किसी ने पेश नहीं, ये तो बात सही कह रही है। इट डिपेंड्स ऑन के हाउ डू यू डील। आपने एग्जैक्टली आपने बैकग्राउंड में क्या क्या किया। उस वक्त जो सिचुएशन थी ना, उस वक्त एक तो मेरा ट्रस्ट इन अल्लाह ताला सीखा भी मैंने, और मैंने किया भी, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट किया भी, और सीखा भी कि अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। दूसरा मैंने रिलेशनशिप को सीखा। उस वक्त मैं इतनी ब्लेस्ड थी कि दुनिया में मैं जितने लोगों को शायद जानती थी ना, उतना में मुझे बिलीव था, और उतने लोगों ने दिल से दुआ की उनकी जिंदगी। बेशक, बिल्कुल दुआएं अल्लाह ताला। और पता नहीं अल्लाह ताला ने किसकी दुआ सुनी, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अभी इस चीज़ को 2017 से अभी 2024 7 साल गुजर गए हैं। बिल्कुल 7 साल। तो माशाल्लाह से माय हस्बैंड इज परफॉर्मिंग वेरी नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो खैर ये दो चीज़ें तो मैंने तो वहाँ ये से यूथ को, इसका मतलब यूथ को भी ये कहना चाहेंगे इस तरह के क्रिटिकल इवेंट्स जिंदगी का एक तो हिस्सा है, आ जाते हैं। इनसे आप लर्न करें। हाँ। यानी इसमें मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हाँ, लर्न वो किए। जो, हाँ। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये हैं, लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया कि हमारे घर में कोई आ जाए रिश्तेदार तो हम तंग पड़ जाते हैं। हाँ, कोफ्त होती है हमें। हाँ। किसी से हमें दूसरों से मिलना जुलना, दूसरों पे खर्च करना ये मुश्किल लगता है। हाँ। लेकिन मेरी जिंदगी जो है ना, मुझे लगता है आप कि बताएं, मेरी आपने ये जिंदगी का कैसे? सुकून जो है ना वो इन चीजों के साथ एसोसिएटेड है। और आप इस चीज की फिक्र नहीं करती, मेहमान आता है, कोई जाता है, आप खर्च हो रहा है, मैं जितना वेलकम दूसरों पे करती खर्च करती हूँ ना, मैं इनफैक्ट अपने ऊपर उतना खर्च नहीं करती जितना मैं दूसरों पे खर्च करती हूँ। और मेरा भी, हाँ, और मेरा बिल्कुल। इस चीज पे बिलीव है कि जो अल्लाह ताला अगर आपको ज्यादा देता है ना, हाँ। आपकी जरूरतों से अगर ज्यादा देता है ना, तो वो दूसरों के लिए देता है, वो आपकी अपनी अय्याशियों के मेरे लिए दिल कुशादा होना चाहिए दूसरों के लिए। बिल्कुल। और फिर ये कि लोग आपके साथ, लोग आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। लेकिन ये क्यों होते हैं? लोग देखिए, आपके पास जितना भी पैसा है और अगर आप उसको अपने ऊपर खर्च करते जाते हैं, आप लोगों की परवाह नहीं करते, तो किसी को आपसे क्या लगे? व्हाई डू दे नीड टू टेक केयर ऑफ यू? व्हाई डू दे नीड टू रिस्पेक्ट यू? आपको रिस्पेक्ट सिर्फ तब मिलेगी जब आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। आपका ख्याल कोई तब रखेगा जब आप लोगों का ख्याल रखते हैं। लोगों के काम आएंगे, लोगों का ख्याल लोगों का रखेंगे, ख्याल हाँ, रखेंगे, लोगों को सुनेंगे, लोगों को तवज्जो देंगे। Yes, बिल्कुल। ऑल्दो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं लोगों को बहुत ज्यादा सुन सकूं। लेकिन ये कि लोगों का ख्याल रखना, कम से कम लोगों को क्रिटिकल मोहब्बत इवेंट्स में करना, आप yes, मौके आते हैं, उसमें तो मिस ना तो करेंगे। माशा- जी मैम, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा ना, आप कुछ माइलस्टोन्स तो आपने बता दिए, अगर कुछ रह गए मैं सॉरी, वो मुझे थोड़ा सा बताएंगे किन की मेंबरशिप है आपके पास, और कुछ ताकि हमारी ऑडियंस को पता लगे कौन कौन से आपको वो जो है ना रिसर्च अवार्ड भी मिलते रहे हैं तहकीक के ऊपर, और कुछ और कोई अगर रह गया तो काइंडली मिसिंग हो तो हमें वो चाहे, ताकि रिकॉर्ड पे रहे कि आपके जी पोर्टफोलियो पे माशाल्लाह। आते हैं। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले अल्लाह करीम का शुक्र अदा करती हूँ कि अगर अल्लाह ताला की सपोर्ट ना होती तो आई कैन स्टैंड नो वे। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की सपोर्ट कि वो जर्रे से जर्रे को पहाड़ बना देता है। यस, अगर अल्लाह ताला नहीं चाहते तो मैं कहीं नहीं स्टैंड कर सकती। बीज को फल बना, दरख्त बना देता है। ठीक तो है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की बहुत सपोर्ट मेरे साथ रही है, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्र अल्लाह ताला का इस चीज़ पे अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये समझ अता फरमाई कि मैंने अल्लाह ताला की ज़ात को पहचाना और उसको समझा, और फिर उसको शायद अपने लिए यूज़ भी किया। अल्लाह ताला को जब भी मुझे मुश्किल पेश आई, जब भी मुझे परेशानी हुई, तो मैंने हमेशा अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भंवर से निकाल नहीं सकती सिवाय अल्लाह के। तो ये माइलस्टोन्स फिर उसकी वजह से क्या क्या मिला, ये बिलीव की वजह से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये मज़ीद कुछ काफी सारी डिटेल तो आ गई है। सबसे पहले तो पहली अचीवमेंट जब मैंने अपनी मैट्रिक में मैंने अपने शहर में टॉप किया था, तो पूरे शहर में जो है ना वो धूम मच गई। हाँ, फलां घर गूंज में होती जो है, है ना लोग देखने जा रहे होते फलां हैं। बच्ची का जी जी हाँ, मुझे इतने याद मार्क्स आए हैं। बल्कि किसी एक का कमेंट भी ये था, किसी ने बताया कि इतने मार्क्स हैं, तो उन्होंने कहा हाँ दरख्तों पे लगे हुए हैं, इतने मार्क्स आए हैं। एग्जैक्टली, लोग मीडिया भी जाता था, मुझे याद है, तो वो लोग भी जाते थे देख के आए भाई। तो ये पहला माइलस्टोन था हाँ। जिसने मुझे बताया। उससे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे में भी कोई एबिलिटीज हैं। उससे मुझे पता चला कि यस आई हैव सम, मतलब कि वक्त का इंतजार करना चाहिए, अल्लाह ताला Yes. खुद ही आपसे वो जरे को पहाड़ बना देता है, एक वक्त आ जाता है कि यस आप बिल्कुल। उसके बाद फिर जो है ना मैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर तो कर रही हूँ अपनी हर जगह पे। मैंने बीए में भी जो है ना डिस्टिंक्ट पोजीशन थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो बोर्ड के एग्जाम थे उसमें टॉप 10 में मैं थी। फिर मैं थ्रू आउट स्कॉलरशिप होल्डर हूँ, टैलेंट स्कॉलरशिप माशाल्लाह। फ्रॉम प्राइमरी टिल यानी मास्टर्स, तकरीबन फ्री में पढ़ी हैं जी, माशाल्लाह। यानी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो लेकिन मैं फ्री में, आजकल के बच्चे जो है ना वो ये कहते हैं जी आपने क्या खर्च कर दिया, पेरेंट्स को ये कहते हैं हमारे ऊपर आपने क्या खर्च कर दिया। हालांकि आज के दौर में तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत although ज्यादा मैं सरमाया चाहिए जी। होल्डर रही हूँ शुरू से, लेकिन मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स कि अगर उनकी सपोर्ट मेरे साथ नहीं होती तो मैं कभी भी आगे नहीं जा तो सकती। आपका आइडियल पेरेंट्स या वो टीचर्स में से कौन से रहे, उनका भी थोड़ा जिक्र कर दें इस देखिए मैं ना सबसे पहले कामयाबी तो मेरे में। फादर जो है ना ही वॉज वेरी मच मोटिवेटेड कि मेरे बच्चे जो है ना वो पढ़ें माशाल्लाह। लिखें और अपनी किसी स्टेज पे पहुंचे। अच्छा, उनमें ये जज्बा था बहुत बहुत ज्यादा। जज्बा था, यानी वो हमारी किसी और को चीज़ को तवज्जो, लग्जरी को तवज्जो नहीं इतना देते थे, लेकिन हम हमारी पढ़ाई पे इतना तवज्जो देते थे कि उन्हें होता था कि आपने पढ़ना है, जहाँ भी जाना है आप जाएं। अच्छा अच्छा। तो पढ़ाई के लिए वो ही वॉज वेरी मच मोटिवेटेड। और माशाल्लाह से उस ज़माने में पैसे तो इतने खर्च नहीं होते थे, ज़ाहिर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से हम पढ़ के आए हुए हैं, और आई वॉज स्कॉलरशिप होल्डर, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एट दैट टाइम। लेकिन ये कि उनका जो मोटिवेशन है और उनका जो पुशअप का जज्बा यानी है, वालिद साहब का, वालिद साहब का। उनकी कौन सी चीज़ों को आपने फॉलो किया मोस्टली? एक तो वो कि जी वो तालीम के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और बात हमारी समझ में आ जाती थी कि पढ़ना है,
जी उनका जो है ना वो थोड़ा सा यानी पहले ज़माने के वालिद साहब का थोड़ा सा एटीट्यूड जो रोब दबदबा वाले, हाँ। रोब दबदबा, हाँ। तो उसमें अब मुझे अंडरस्टैंडिंग, पहले हम लगता था कि शायद हम अब्बू से डरते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि डर नहीं, वो आज भी हम discipline उनकी था। रिस्पेक्ट उतनी नहीं करते। अच्छा, आज भी जब वो हमारे सामने बैठे होते हैं ना तो हम आहिस्ता आवाज में बात करते हैं। जबरदस्त। तो अब मुझे ये समझ आई कि ये रिस्पेक्ट, हाँ, ये देखा ना, ये respect पहली है। वैल्यू भी है, ये रिस्पेक्ट, लेकिन अदब। हमने आजकल ना उसको खो दिया रिस्पेक्ट। हम टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। आज तक भी हमारे टीचर्स, ऑल्दो हम उनके साथ एक ही महफिल में हम यानी तकरीबन ये लाहौर में कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं होती जहाँ पे उन्होंने हमें एज अ गेस्ट बिल्कुल इनवाइट नहीं ठीक है, होता। बिल्कुल ठीक है। तकरीबन रोज ही कहीं ना कहीं जाना Acknowledge पड़ता है। करते जितना रहते हमें हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना, जी बिल्कुल ऐसे ही आपका, हाँ। इतना ही हमें जो है ना वो बाहर कॉन्फ्रेंसेस कहीं- में, वर्कशॉप में, सेमिनार्स में, हाँ सेमिनार्स जी, में, मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, हाँ। तो ऑल्दो हम अपनी टीचर्स के बराबर बैठते हैं, लेकिन आज भी हम उनके साथ जो है ना बड़ी रिस्पेक्ट, अदब और लिहाज के साथ और झुक के बात करते हैं। तो इसका मतलब रिस्पेक्ट तो सबसे पहला जीना है जी कामयाबी बहुत- के लिए, बहुत और हर important है वक्त उन्होंने थ्रू आउट इन्होंने मेंटेन रखा। अब मैं चाह रहा हूँ इसी से हम ना बच्चों की काउंसलिंग करियर के हवाले से भी आप बात ही कर लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या हो रहा है उन्हें? साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, ये इसके क्या लोगों बच्चों को मॉनिटरी टर्म्स में और उनको सोशल टर्म्स में या किस तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए Why they should adopt? साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी पढ़नी चाहिए। इसके पहली बात तो प्राइमरीली भी आपको ह्यूमन बीइंग्स जो है ना वो हर फील्ड में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि आजकल आपको, सॉरी मैं बात रोक रहा हूँ, कि कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, हार्ड साइंसेस की बात करते हैं, इंसान टेक्निकल चीज़ों की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन ये सॉफ्ट साइड है ना, उसको हम किस तरह इग्नोर कर रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है, कंप्यूटर साइंटिस्ट इंसान है ना, इंजीनियर्स इंसान है ना, बिल्कुल। डॉक्टर्स इंसान है ना। जब तक इंसान को ये नहीं पता कि मैंने अपनी प्रोफेशनल सेटिंग में डील कहाँ पे करना है, कैसे करना है, Handling लोगों में, के साथ हाँ। कैसे करना है, ठीक है, अपनी ग्रोथ किस तरह से करनी है, मुझे अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग किस तरह से करना है, कौन सी कोर वैल्यूज है जिनको मैंने लेके चलना है, तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो साइकोलॉजी तो डील इंसानों के साथ करती है। तो साइकोलॉजी का जो फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो ये चीज, दूसरी तरफ ये चीज आप देखिए कि लाइफ में चैलेंजेस कितने बढ़ गए हैं। बिल्कुल। हम मटेरियलिस्टिक हो गए, ओवरऑल लाइफ की फास्ट पेस हो गई है, सोशल इश्यूज का भी बता दें आप, सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए जैसे हैं। हमने मैरिज को तो डिस्कस कर लिया, बहुत सोशल इश्यूज हैं, कोई एक नहीं है, यानी ड्रग एडिक्शन को भी कर लिया बहुत बड़ा था, इशू है, और सोशल हमारी मीडिया एडिक्शन की भी बात हो गई, हाँ। सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत है। हाँ। तो यानी सोशल इश्यूज जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, और लाइफ जो है ना वो एक तो फास्ट पेस पे चलेगी, दूसरी तरफ मटीरियलिस्टिक हो गई, तीसरी तरफ हम वेस्टर्नाइज वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं, जो हमने भी डिस्कस किया है कि हमने उनकी चकाचौंध को पकड़ लिया लेकिन कोर वैल्यूज को छोड़ दिया, हमारी कोर वैल्यूज को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब जिसकी वजह से लाइफ में मुश्किलात, परेशानियां, और हमारे अब हमने जो देखा डिप्रेशन रेट, सुसाइडल आइडिएशन का रेट, ड्रग एडिक्शन का रेट, यानी डिवोर्स रेट्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। अब आपको जिस तरफ हम जा रहे हैं जी जी, वो एक आप कह लीजिए कि थोड़ा तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा ठीक अच्छा। है, दूसरी तरफ तो उसको अगर आप तब्दील हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें अपने एक तो साइकोलॉजी को पढ़ना, ठीक है, इंसान की नेचर को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एटीट्यूड किस तरह हमें इफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजी को मैम थोड़ा सा, सॉरी रोक रहा हूँ, डिफाइन कर देंगे ग्लेम माइंड की हैसियत से कि नफ्सियात क्या है, एक आम बंदे को कैसे समझ आए? वैसे तो समझते हैं बड़े लोग, एक दूसरे को एकदम कहते तू साइको है, तू नफ्सियाती जी है। जी, ये वैसे ये बड़ी वर्ड तो बहुत मजे ज्यादा की यूज बात करते हैं, लेकिन है, ये तो डेफिनेशन होती नहीं है। ये डेफिनेशन हाँ, वही वर्ड्स ऑफ डेथ ही यूज कर रहे होते हैं। नहीं, वो ये जी कहते हैं जी आप साइको हैं, हाँ, ये नफ्सियाती है जी ये। या एक और वो बड़ा फनी सा जुमला होता है जी, आप मुझे देख के बताएं कि मेरी क्या पर्सनैलिटी हाँ। है। अच्छा, ये साइकोलॉजी जादू नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजी बेसिकली ये है कि इंसान की नफ्सियात को समझना, और नफ्सियात क्या है? नफ्सियात ये है कि आप बिहेव किस तरह से करते हैं, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे इमोशंस, जज्बात बर्ताव, किस तरह सलूक, से हाँ। हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह का हम सोचते हैं, जिस तरह का हमारा एटीट्यूड होता है, जिस तरह की हमारी परसेप्शन होती है, जिस तरह के हमारे जज्बात होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। तो हम जज्बात को समझ जाते हैं, एटीट्यूड्स को समझ सकते हैं, वो डेवलप किस तरह से हुए और वो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट किस तरह से हुए। जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो फिर अगर जो मैल अडेप्टिव थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक होती हैं, फिर हम उस पर वर्क करते हैं कि हम मैल अडेप्टिव जो है, जो गैर मुताबिकती हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए एडजस्टमेंट को आसान नहीं बना रहे, उन मैल अडेप्टिव थिंकिंग पैटर्न, एटीट्यूड्स को, बिहेवियरल पैटर्न्स को, इमोशंस को फिर हम अडेप्टिव के साथ रिप्लेस करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, गाइड करते हैं, और जब वो अडेप्टिव हो जाते हैं तो फिर हमारी लाइफ हमारे लिए
आसान हो जाती है। तो साइकोलॉजी बेसिकली ये है हमारे एटीट्यूड्स को, परसेप्शंस को, पर्सनालिटी को, इमोशंस को, बिहेवियर को समझना, ये साइकोलॉजी ठीक हो है। गया। और जब आप इसको समझ लेते हैं, मैंने अपनी भी एक्सपीरियंस से ये लर्न किया है कि जब हमने साइकोलॉजी पढ़ी तो उससे हमें अंदाजा हुआ कि आप अच्छा किस तरह से सोच सकते हैं, अच्छा, यानी आपकी सोच कहाँ पे इनफ्लेक्सिबल है, कहाँ पे मेल एडेप्टिव, रिजिडिटी कम हो सकती रिजिडिटी है, कहाँ पे हाँ। है, ठीक है। तो उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते एम्पैथेटिक हैं, कैसे हो सकते हैं, यस, एम्पैथी उसको कैसे, अंडरस्टैंड किस तरह से कर सकते हैं और उसको आप एडेप्टिव के साथ रिप्लेस, और एक हमदर्द इंसान कैसे बन सकते हैं, उसका सफर भी। और साइकोलॉजी जो है ना, अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन देखें ना, तो जितनी डिमांड मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस की है, अच्छा, अब राइजिंग डिमांड जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है। तो साइकोलॉजी डिसिप्लिन वो है जिसकी डिमांड हर अगले स्टेप पे बढ़ती जाएगी, कम नहीं इसी वजह से आप लोगों के डिविजन भी ज्यादा हो रहे हैं, लोग Yes. ज्यादा आ रहे हैं, हाँ। देखिए चैलेंजेस कम तो नहीं हो रहे, नहीं, ये तो ज्यादा हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हो रही है आप सिचुएशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कम तो नहीं हो रहे। बढ़ रही है। और अगर आप ये देखें हमारी जो यूथ है उसकी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, रेजिलियंस कम हो रही है, स्ट्रेंथ कम हो रही है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, हाँ जी। इसको बिल्डअप करना है, हाँ, ठीक है। हाँ। तो ये जितने उसके हमारे लिए आपको लोग चाहिए। साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, जितने सोशल इश्यूज, जितने Psychologist चाहिए फिर आपको। यस, उतना ही साइकोलॉजी की डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक और है। इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी बहुत पुराना डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन इतने छोटे टाइम में, थोड़े टाइम में साइकोलॉजी इतना ग्रो किया है कि अब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ जी, 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 साइकोलॉजिस्ट AP, हाँ जी। है, इसकी जी 44 डिवीजन्स है, अच्छा, 44 डिवीजन, जिसमें जेंडर साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल अच्छा। साइकोलॉजी, पीस साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, यानी ये तो मैंने इतनी टाइप्स हैं, religious जैसे psychology- AI की 9-10 टाइप्स बन चुकी हैं अब। 9-10 नहीं थी हमारी 54 AI की आपकी 48, हाँ। हमारी 54 डिवीजन तो न्यूरो साइंस भी आप का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हमें पता लगा। तो जो मैंने एग्जीक्यूटिव कॉग्निटिव हाँ, फंक्शनिंग की बात की हाँ। ना, कि हमारे हायर ऑर्डर थॉट पैटर्न्स ये डेवलप किस तरह से होते हैं और इनको हम यूटिलाइज किस तरह से करते हैं, ये न्यूरो साइकोलॉजी। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स है क्या? वो कई दफा ना लोग जाते हैं ना, वो कहते हैं यार तुम्हारा न्यूरो का, वो न्यूरोलॉजिस्ट का मसला नहीं, तुम्हारे ट्रांसमीटर्स का मसला है, तुम्हारा बिजली का सिस्टम खराब हो गया है। जी बिल्कुल, हमारे तो वो यही कनेक्शन है है। बेसिकली, हाँ। न्यूरल कनेक्शन है। हाँ। आपको कोई स्टिमुलस मिलता है, न्यूरॉन्स वो मैसेज लेके ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, थिंक करता है, उसको एनालाइज करता है कि इसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है, फिर वो ऑर्डर इशू करता है और दूसरे न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे यानी हमारे मसल्स को मैसेज देते हैं और मसल्स उस तरह से रिएक्ट करते तो हैं। आप मुझे तो ये बताएं, पूरा हाँ। न्यूरल सर्किट है। ठीक हो गया। अब ये प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है, हमारे ब्रेन में हो रही है। आप लोग कहाँ स्टडी कर रहे हैं, किस एरिया को देख रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस पूरा का जी स्टडी जी, कर? कि हमारी प्रोसेसिंग किस तरह से हो रही तो किस तरह देखेंगे कि लेमैन को बताना हो तो न्यूरो साइंस क्या है, या इसको किस तरह हम लोग आप स्टडी कर रहे हैं, और ये रिसर्च एरिया फ्यूचर का क्या है? है। देखिए ये बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स है। emerging मुझे भी- जैसे AI है ना, मुझे कोई लोग कहते हैं उसके हम पल्ला न्यूरो साइंस है। जी जी बिल्कुल, न्यूरो साइंस हाँ। है। तो इसमें ये है कि एक तो न्यूरो साइंस है और एक न्यूरो साइकोलॉजी। न्यूरो साइकोलॉजी अच्छा। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, इनहिबिशन, यानी एग्जीक्यूटिव कॉग्निटिव फंक्शनिंग को स्टडी करती है कि ये डेवलप किस तरह से होते हैं और हमारे बिहेवियर को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्रेशन की अगर बात करें, हाँ, हाँ। आपकी इनहिबिशन एबिलिटी लो है, अच्छा। यानी आप अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमोशन को इनहिबिट करके फौरी ट्रिगर कर देते हैं आप, हाँ, कंट्रोल में नहीं रहता। कंट्रोल में नहीं रहते। हाँ। आप उसको कंट्रोल करके, उसको इनहिबिट करके उसकी जगह एडेप्टिव रिस्पांस नहीं दे पा रहे, तो आप फौरन से एग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, आप ड्रग एडिक्शन की तरफ जाते हैं। और अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को, अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपनी नेगेटिव परसेप्शन को, मेल एडेप्टिव जो परसेप्शन है उसको आप इनहिबिट करें, उसकी जगह पे आप प्रोसेस करें, सोचें कि नहीं ये इनअप्रोप्रिएट वे है, इसकी जगह पे हमने अप्रोप्रिएट थिंकिंग क्या हो सकती है, अप्रोप्रिएट थॉट प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं, इमोशंस क्या हो सकते हैं, मैंने किस तरह से इस सिचुएशन में बिहेव करना है। तो मैं इसी बात पे मैडम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप शॉर्ट नोटिस पे आई, प्रोफेसर साहबा, डॉक्टर साहबा, इनके बहुत सारे लक़ब हैं। बहुत शुक्रिया मैम। इंशाल्लाह आपको अगर ज़्यादा हमें मौका मिला, आपके साथ बड़ा अच्छा लगा मैं बातचीत करके, और एक शॉर्ट नोटिस पे बहुत अच्छा आई, लगा। और ये मेरे शुरू के जो पॉडकास्ट हैं उनमें ही मैंने इनको लेके चल रहा हूँ, और इनकी दुआएं भी चाहिए, और मैं इस काज में इनसे, बल्कि इन्होंने एग्री कर लिया कि वो मेरे साथ हैं, इनका साथ देंगे। इससे आगे भी एक प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं, जब ज़िंदगी का क्या पता है, ज़िंदगी है तो इतनी है फ़रेब ख्वाब हस्ती की कि आंखें बंद और आदमी अफसाना हो जाए। इससे पहले कि अफसाना हो जाए तो हमें कुछ ना कुछ करना है। मेरे अंदर ये भी फीलिंग है और इनमें भी है। थैंक यू सो मच। चलिए, माशाल्लाह।